లోక్సభలో రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. To say, Speaker, sir, okay, all right, that on the matter of MSP and on the matter of agricultural credit, our government, the Achedin government, that's their name, not my name, so I take their permission to use it. The Achedin government has failed the country. I'd like to point out a little bit about the MSP and agricultural credit. In our time, UPA government's time, agricultural credit grew by 700%. It went up to 8 lakh crore rupees and 6.5 crore farmers benefited from this. Our average increase in credit was an average 20% every year. I'm sad to say that the current government has only given an increase of 5%. Shame. Comparing MSP, the current government has allowed it to stagnate. This is the heart of agriculture. Our record is available to everyone. I'd like to take your permission to repeat our record. In wheat, we raised the MSP from 640 rupees to 1,400 rupees per quintal. In rice, we raised the MSP from 560 rupees to 1,310 rupees per quintal. In sugarcane, we raised the MSP from 73 rupees to 220 rupees per quintal. And what has the current regime done? What has the current regime done over the last year? I'd like to say, asli baat sun lo, wheat has been raised by 50 rupees. Sugarcane has been raised by 10 rupees. And cotton has been raised by 50 rupees. Same. As if that was not enough. Our farmer struggles. What is the result? What is the result of this? You talk about defending the country. You talk about strengthening the country. What is the result of this? The result of this is that during our time, agriculture grew at 4.1%. In the previous NDA government, the India Shining government, your record was 2.6% agricultural growth rate every year. Your Prime Minister, during the campaign, spoke to the farmers and said that he will look after them. MSP is where it was. Agricultural credit has not been improved. And agricultural growth rate is 1%. Shame. How can you talk about strengthening this country if the foundation of this country is the farmer? Yeah. Yes. How are you going to do that? Yes. Someone from an NGO came to me 2 days ago before our rally, and he said that he had gone to Mr. Gadkari. First, I'd like to praise Mr. Gadkari. He's not here, Gadkari, sorry. I'd like to praise him because he is the one minister here who speaks his heart and tells the truth. Yeah. I'd like to praise him. और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि किसान को ना भगवान पे ना सरकार पे भरोसा करना चाहिए। और अच्छी बात है कि उन्होंने अपना जो उनके दिल में था वो उन्होंने कह दिया। दिल की बात कही। मन की बात। अभी कहता हूं, अब as if that was not enough, agricultural growth rate is stagnating, farmer doesn't get credit, MSP is where it was, and the weather lets the farmer down. ओला पड़ा, बारिश पड़ी और किसान का नुकसान हुआ।
सबसे पहले मैं आपके प्रधानमंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं, छोटा सा। देखिए, पहले एक्सपर्ट्स ने कहा, शांत हो जाओ। अरे आप अरे सुनो सुन लो। अरे सुन तो लो। हिंदुस्तान के सबसे बड़े एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स ने कहा कि 180 लाख करोड़ लाख हेक्टर पे नुकसान पहुंचा है। 14 स्टेट्स में नुकसान हुआ है। 40,000 करोड़ रुपए नुकसान हुआ है। उसके बाद आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 180, देश के प्रधानमंत्री कहते नहीं, बोलने दीजिए, देश के प्रधानमंत्री कहते नहीं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो गलत है। मैं जानता हूं 106 लाख हेक्टेयर पर असर हुआ। उसके बाद आपकी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री कहती है नहीं भैया, प्रधानमंत्री जी गलत कह रहे हैं, 80 लाख हेक्टेयर इफेक्टेड है। तो सबसे पहले आप हमें बताइए, एक्सपर्ट सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं, या आपकी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री सही कह रही है? तीनों सही कह रहे हैं। यही बीजेपी का तरीका है। यहां कुछ बोलो, वहां कुछ बोलो, वहां कुछ बोलो, फिर बोलो, तीनों की बात किसान को नुकसान हुआ। बीच में चूंकि गलत अनाज मंडियों गलत आंकड़े आ रहे हैं, मुझे गलत जानकारी देना चाहता हूं। जानकारी मिलने में एजेंसी ठीक नहीं रही होगी। ये 180 लाख हेक्टेयर का नुकसान राज्य सरकारों ने बताया था। फिर राज्य सरकारों ने 106 लाख हेक्टेयर का बताया था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की तो राज्य सरकारों ने 80 लाख हेक्टेयर बताया था। कृपया इसको सुधार कर दें, कृपया इसको सुधार कर दें, इसको सुधार। राज्य सरकारों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बताया था, राज्य सरकारों ने बताया था, राज्य सरकारों ने मैं आपको सुझाव देता हूं। ये कंफ्यूजन हो रहा है, हाँ, है ना? कोई 106 कह रहा है, कोई 80, 180, कोई 180 कह रहा है, कोई 80 कह रहा है। मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, हाँ, प्रधानमंत्री जी को सुझाव दे रहा हूं, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी जाकर अपनी आंखों से देख लें? क्यों नहीं वो जाकर जहां लोगों के दिल में दर्द है, जहां उनको मुश्किल हो रही है, क्यों नहीं वो जाकर वहां से बात कर लें? प्रधानमंत्री को विदेश यात्रा चाहिए। गेहूं मंडियों में पड़ा हुआ है, गेहूं मंडियों में पड़ा हुआ है, सरकार उठा नहीं रही है। किसान फर्टिलाइजर लेने जा रहा है, उसको आप फर्टिलाइजर नहीं दे रहे, उसको आप लाठी मार के भगा रहे हैं।
देखिए विदेश की सर, अच्छा सुनिए, स्वामीनाथन जी ने कहा, वेरी गुड, देखिए एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आपकी जो सरकार है वो किसानों की मुश्किलों को इग्नोर, बोलने दीजिए, किसानों की मुश्किलों को इग्नोर कर रही है और मजदूरों की आवाज को नहीं सुनती है। आप लोगों की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, वो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बड़े लोगों की सरकार है, नहीं सुनिए तो आपकी सरकार बड़े लोगों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है, वो हम समझते हैं। सभापति जी, प्लीज, उपसभापति जी, सुनिए सुनिए, सदन में हर एक को, पप्पू जी, पप्पू बाबू प्लीज बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए, हमको हाउस चलाना है, प्लीज हाउस चलाना है। भाई विपक्ष में कोई व्यक्ति जो चाहिए उनको पार्लियामेंट्री मर्यादा के अनुसार बोलने का अधिकार है, बोल रहे। बाद में आप में से किसी को भी बोलना चाहे तो उनको भी मौका मिलेगा, ये पद्धति है। इसलिए कोई व्यक्ति बीच में टोका टोकी नहीं करना चाहिए, कोई रंगीन कमेंट्री नहीं करना चाहिए। ये बहस बहुत महत्वपूर्ण बहस है, पूरा देश सदन के वो देख रहे। अरे भाई पप्पू क्यों? अरे आप मिलना आया सुबह क्यों बोलते हैं? इसलिए सब रमेश और कोई भी व्यक्ति
बीच में इंटरफेयर नहीं करना, आराम से शांति से बहस होने दीजिए। तो वो जो सूट का मामला था वो खत्म हो गया है, उसको आपने ऑक्शन कर दिया, बात बन गई। उसके बारे में अब हम नहीं बोलेंगे। खुश? वेरी गुड। पानी पी रहे तभी भी इनको दिखा रही है। तो ये सच्चाई है और इस बात को आप भी मानते हैं, इसीलिए आप इतनी जोरों से चिल्ला रहे हैं कि किसान को आपकी सरकार, मजदूर को आपकी सरकार निग्लेक्ट कर रही है। कमेंट्री बनने आप बोलने के अब सवाल उठता है, कि आपके जो प्रधानमंत्री हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, मगर वो देश के हैं मगर आपके भी हैं। क्या आप कह रहे हो कि वो आपके नहीं है? आपके नहीं है वो? मैंने गलत बोला, आपके नहीं है वो। देश के तो है मगर आपके नहीं है क्या? तो क्यों चुप करा रहे हो मुझे? ठीक है, वो आपके प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। वो पॉलिटिकल कैलकुलेशन तो समझते हैं, चुनाव जीते हैं। तो मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है और वो मैं देश से पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, 60% जनता एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। किसान, मजदूर 67, आप मुझसे अच्छा जानते हैं 67, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। और आपके जो प्रधानमंत्री हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो पॉलिटिकल कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो मेरे दिमाग में सवाल उठ रहा है कि अगर वो पॉलिटिकल कैलकुलेशन समझते हैं तो वो 60% लोगों को क्यों गुस्सा कर रहे हैं? ये सवाल है। प्रैग्मेटिक व्यक्ति हैं, वो क्यों 60% लोगों को नाराज कर रहे हैं? और इसके बारे में मैं सोच रहा हूं कि इसका कारण क्या है। स्वामीनाथन जी ने कहा कि अंग्रेजी का कोट है तो अंग्रेजी में बोल देता हूं, फ्यूचर विल बिलोंग टू नेशंस विद ग्रेन्स नॉट गन्स। तो डिफेंस की बात होती है, मिसाइल्स की बात होती है, फाइटर प्लेन की बात होती है, और 60% जनता को आप भूल रहे हैं। मैंने अपने आप से पूछा ये क्यों हो रहा है, और मेरे पास एक ही जवाब मिला। जवाब क्या है? जवाब क्या है कि कारगिल में जमीन की जो कीमत है, हिंदुस्तान के किसान की जमीन की जो कीमत है